Hello students, today's topic is IUPAC nomenclature of coordination compound. It is very important and many questions asked in previous year from this section in G Mains, G Advanced, NEET and board. Okay, let's start. So start करते हैं. If the compound is salt, the cation is named before the anion and a space between them. कोई भी कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में साल्ट होते हैं, पहले हम लोग किसका नेम लिखते हैं? केटायन के, देन एनायन के, बीच में स्पेस देते हैं. ओके, पहले किसका नेम लिखेंगे? केटायन का, बिफोर एनायन एंड देन एनायन एंड अ स्पेस बिटवीन देम. ओके, उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नेमिंग ऑफ एंटिटी प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन से एंटिटी प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं. तो किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एक होते हैं लिगेंड्स यहाँ पर, फिर सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे, पहले हम किसका नेम लिखते हैं? वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट, आफ्टर दैट मेटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड फिर ऑक्सीडेशन स्टेट. किसमें? स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट में. इसी को एलम रूल का है, कोई रूल नहीं है बट एक ट्रिक है. एल फॉर लिगेंड, एल फॉर सेंट्रल मेटल आयन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, आगे देखते हैं. नेम ऑफ लिगेंड्स. इन द नेम ऑफ लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स इज एनायनिक, when ligand end with IDE, its name is replacing by IDE, replacing by ID with O. हम ID को O के साथ रिप्लेस करते हैं. सम टाइम कहीं कहीं मिलेगा किसी किसी बुक में कि IDE रिप्लेस टू O. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. क्लोराइड change into chloride 2 and chloro. Similarly, bromide change into bromo and sometime bromide 2. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साइनाइड चेंज इंटू साइनाइडो या साइनो. ओके, ऑक्साइड चेंज इंटू ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड चेंज इंटू हाइड्रोक्सो, हाइड्राइड चेंज इंटू हाइड्राइडो and nitride change into nitrido, peroxide change into peroxido and perhydroxido is change into perhydroxo, sulfide change into sulfido. ओके, इमाइड कहते हैं NH, इमाइड चेंज NH2 माइनस इमाइडो एंड एमाइड चेंज into एमाइडो. ठीक है, इन नेम ऑफ लिगेंड्स end with only IDE. आगे देखते हैं हम लोग. ligands और लास्ट नेम end with ITE and ATE. IT becomes ITO by replacing E and AT. IT become ETO and also AT become ATO. लिखा नहीं मैंने. E change into O. Example, carbonate change into carbonato, E change into O. Here it is oxalate into oxalato, sulfate change into sulfato, nitrate change into nitrato. It is thiosulfate change into thiosulfato, sulfite SO3 minus change into sulfito. Okay, acetate change into acetato and after that नाइट्रेट. इट इज़ बॉन्डेड विथ वन, तभी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, इसे नाइट्रेटो O कहते हैं. व्हेन इट इज़ बॉन्डेड विथ और मेटल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रेटो N. इसे हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे देखते हैं हम लोग, अगर एक है N डबल बॉन्ड O and O, these O
coordinate when metal, it is called nitrito O. Okay, and when this ligand like this and this lone pair used to bonding with metal and coordinate bond, it is called nitrito and it is ambident ligand. लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था. ओके, आगे देखते हैं. The neutral ligands are named as the molecule. Neutral ligand example amine, water and nitrogen oxide and carbon monoxide. These are some important examples. And NH3 amine, ammonia is called amine, water is called aqua, nitrogen oxide called nitrosyl, carbonyl it is called carbon monoxide. Okay, these are some important ligands, neutral ligands. And O2 is called dioxygen, N2 is called nitrogen, it is pyridine. देखते हैं स्ट्रक्चर पायरिडीन का. It is like this. It is pyridine. ये pyridine का स्ट्रक्चर है. एंड लास्ट में इथिलीन डायमीन, इट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. देखते हैं इथिलीन डायमीन का एग्जाम्पल. इट इज़ लाइक दिस. electron pair here. This is bidentate ligand, ethylene diamine. ओके, आगे देखते हैं कुछ और ligands. When ligand is positively charged, we use IUM at the end. For example, hydrogen is called change into hydrogenium, nitrosodium is converted into nitrosilium or nitrosonium, nitrate is converted into nitrosium, and aniline is converted into alininium. ठीक है, आगे देखते हैं. If ligands present more than once, if ligand present more than once, एक से ज़्यादा ligand present होते हैं, then their repetition is indicated by prefixes, which is Greek prefixes. Okay, mono for 1, di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6 and hepta for 7. These Greek prefixes is used when more than one same kinds of ligands present. Okay, एग्जाम्पल देखते हैं. अगर ऐसा हो FeCN6, तब क्या करते हैं, यहाँ पे 6 साइनाइड है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हेक्सासाइनो. 6 के लिए यूज हुआ है, 6 के लिए हेक्सा, लिखेंगे हेक्सासाइनो. ओके, आगे देखते हैं. If a complex contain more than one kinds of ligands, their name is written in alphabetical order. एग्जाम्पल देखते हैं हम. एक से ज़्यादा ligands हो, जैसे CONH3, it have two types of ligand, it is called amine, it is called chlorido. amine, it is chlorido. तो पहले इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ट्राइएमीन, देन ट्राइक्लोराइडो. ओके, क्लियर. आगे देखते हैं अब. इफ लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन प्रीफिक्सेस, इफ कोई भी लिगेंड्स पहले से ग्रीक प्रीफिक्सेस का यूज अगर रहता है, फॉर
फॉर एग्जांपल इथिलीन डाइमीन, यहाँ पे डाई इज यूज्ड और इट इज़ पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में मोर देन वन डोनर साइट, एक ही साथ एक से ज़्यादा डोनर साइट हो, और उसे क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, देन प्रीफिक्सेस bis, tris, tetrakis, pentakis इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। अगर ये सब प्रीफिक्स पहले से मौजूद है तो 2 हम यूज करते हैं bis 3 के लिए, ट्रिस 4 के लिए, टेट्राकिस 5 के लिए, पेंटाकिस। ओके क्लियर। आगे देखते हैं। हमने देखा अभी लिगेंड का नेम हो गया, लिगेंड। फिर हम लोग मेटल आयन देखते हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देखते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन का नेम देखते हैं। इफ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट मीन्स अगर कोई भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल, तब क्या करेंगे हम लोग, जो केटायन का नेम है वही हम लोग, मेटल का नेम वही एज यूजुअल लिखते हैं। ठीक है, वही लिखा गया। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर नेम इज रिटन एज यूजुअल नेम। हाउएवर इफ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इफ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वी ऐड 8 सफिक्स, हम लोग 8 सफिक्स ऐड करते हैं इंड ऑफ मेटल आफ्टर ड्रॉपिंग द नेम ऑफ मेटल नेम। मेटल नेम के बाद हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, 8 जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट अगर ये किस में नेगेटिवली चार्ज में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट मीन्स ये अगर इसके अंदर हो, ये नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या करते हैं हम लोग, कोबाल्ट में लास्ट में 8 जोड़ दिए। ठीक है, आगे सर्टेन मेटल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स, कुछ मेटल जो कि लैटिन नेम से, फॉर एग्जांपल आयरन इज कॉल्ड फेरेट, कॉपर चेंज इनटू क्यूपरेट इफ दे प्रेजेंट इन एनायन, सिल्वर चेंज इनटू अर्जिनेट, गोल्ड चेंज इनटू ऑरेट एंड टीन चेंज इनटू स्टाइनेट। ओके, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्लियर। देखते हैं आगे देखते हैं। The oxidation state. The oxidation of state of metal is written in Roman numerals following the name of transition metals. Transition metals के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं name of oxidation state in Roman number, that is 1, 2, 3 etc. ठीक है, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम पहले किसके नेम लिखते हैं, लिगेंड के नाम, लिगेंड के लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, इट इज़ ये लिगेंड्स अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले मेटल्स होते हैं, लिखते हैं, लिखने का तरीका, देन लिगेंड्स। ओके, बट जब हम नेम लिखते हैं आईपीक नेम, तो हम पहले किसका नेम लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वेदर इट इज़ एनायनिक, केटायनिक, या अगर केटायनिक हो, आयन कुछ भी हो, और न्यूट्रल कुछ भी हो, पहले किसके नेम लिखते हैं हम लोग, पहले ऑलवेज लिखते हैं लिगेंड के नेम, देन सेंट्रल मेटल आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिटेन इन बॉक्स। ओके, एक रूल जो है, क्या मैंने लिखा है नहीं,
if simple cation and simple anion is present more than one. For example, K4 FeCN 6, यहाँ पे K4 है कैटायन, तो सिर्फ हम लोग इसमें पोटासियम लिखेंगे, ठीक है, नॉट टेट्रा पोटासियम, ठीक है। ये रूल खत्म हुआ। कुछ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के, ये कैटायन है और ये एनायन है। एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्योंकि पोटासियम पे A1 पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ दे दिया 4 तो यहाँ पे 4 नेगेटिव लिखेंगे। तो पहले जब भी लिखते हैं हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का। तो कैटायन का नाम क्या हो गया? पोटासियम। फिर हम लोग एनायन का नाम लिखेंगे, तो एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स स्पेयर। तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर में हम लोग LMO रूल फॉलो करते हैं। L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, आयन, O फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिगेंड तो यहाँ पे साइनाइड है, लिख देंगे हेक्सा साइनो या साइनाइडो। आयरन है, हमने बताया था जब भी कोई भी मेटल जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर, वैसा कॉम्प्लेक्स स्पेयर जिस पर नेगेटिव चार्ज उसके अंदर रहता है, तो AT लास्ट में जोड़ते हैं। और कुछ कुछ मेटल्स में लोग लैटिन नेम देखते हैं, तो इसका फेरेट हो जाएगा ARRAT। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक ट्रिक है, 4 नेगेटिव है ना, और यहाँ पे साइनाइड पे 1 होता है, तो 6 साइनाइड पर 6 नेगेटिव। इट मीन जरूर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा तब ना 4 नेगेटिव आया। इट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसी को ले लेते हैं, x मानते हैं सर, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 × +1 फॉर पोटासियम। आयरन के लिए x प्लस साइनाइड के लिए -1 होता है एक साइनाइड का, 6 दे देंगे बराबर 0। ओवरऑल ले रहे हैं, सॉरी +4 होता है पोटासियम का, +4 x - 6 = 0। x प्लस माइनस माइनस बड़ा का साइन 6 से 2 = 0, तो x = +2। ये ऑक्सीडेशन लिख देंगे, हो गया नाम। बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं, ये कैटायन या एनायन। कैटायन का नाम लिख देंगे सोडियम। कभी भी हम सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे लिगेंड है, ये ऑक्जेलेटो, O से ऑक्जेलेटो, B से ब्रोमाइडो, पहले B लिखेंगे। कैटायन और एनायन की भी जगह छोड़ते हैं। कैटायन हो गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, डाइब्रोमो हो गया, क्लियर। फिर डाई ऑक्जेलेटो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सोडियम का क्या होता है? +1 होता है, 1 × 2 प्लस इसका x लेते हैं, x प्लस ऑक्जेलेट आयन -2 होता है 1 पे, 2 पे 2 हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन पे -1 होता है, × 2 हो जाएगा, = 0। सॉल्व करते हैं, +2 प्लस x -2 2 = 4, -2 1 = 2, 0। तो x यहाँ 6 हो जाएगा, +2 = 0, x = इधर जाएगा +4, यहाँ पे हो गया +4। सिंपल था। आगे देखते हैं, CO N3 मीन्स होता है पर एक नेगेटिव चाहिए, एजाइडो ग्रुप। नेम हो गया क्या? सिर्फ एनायन नहीं लिखा हुआ, कैटायन है नहीं, कैटायन छोड़ देंगे। पहले एनायन का नाम लिखते हैं, तो 4 होगा, टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट 2 आयन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑक्जालेटो के बाद तो हमने कैटायन का नाम लिखा ही नहीं, मतलब मेटल का। यहाँ हो जाएगा प्लैटिनेट 2। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ लिगेंड से ऑक्जालेट, यहाँ पे ब्रोमाइडो या ब्रोमो। पहले इसका नाम लिखते हैं कैटायन का, सोडियम, देन डाइब्रोमो, डाइऑक्सालेटो, उसके बाद प्लैटिनम को लिख देंगे प्लैटिनेट, बिकॉज ये प्लैटिनम नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन पेयर पे है।
ठीक है, सिंपल था। आगे देखते हैं कुछ। FeCN 2 Br2 OH2, यहाँ पे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव देते हैं, सॉरी। तो पहले यहाँ पे कैटायन नहीं, सिर्फ एनायन है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? LMO रूल। L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा है? साइनाइडो, C फॉर साइनो, B फॉर ब्रोमो, H फॉर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो। क्या लिखेंगे? पहले C लिखेंगे, डाई साइनो, सॉरी पहले तो B लिखते हैं, डाई ब्रोमो, देन डाई साइनो, देन डाई हाइड्रोक्साइडो, हाइफन दे रहा हूँ। आयरन के लिए क्या हो जाएगा? फेरेट। इट इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो आयरन का क्या करते हैं? X मान लेते हैं। देन उसके बाद आयरन का X मान लिए, प्लस साइनाइड का 2 इंटू -1 बिकॉज 1 साइनाइड का है -1, ब्रोमाइड का 2 इंटू -1 प्लस हाइड्रोक्साइड का 2 इंटू इसका -1 होता है, इक्वल टू 3 नेगेटिव। X -2 -2 -2 इक्वल टू 3 नेगेटिव, -3। X -6 इक्वल टू 3 नेगेटिव। X बराबर क्या होगा? 3 नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर जाएगा +6 बराबर +3। लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिगेंड का नाम देते हैं। यहाँ पे लिगेंड कौन सा है? साइनाइड है, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड। C फॉर साइनो, B फॉर ब्रोमाइड, H फॉर हाइड्रोक्साइड। तो पहले B का लिखते हैं, ठीक है, डाई ब्रोमो या ब्रोमाइडो, फिर C डाई साइनो, देन डाई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सीडो दोनों चलेगा, हाइड्रोक्सो फेरेट, बिकॉज आयरन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पेयर पे है। कितना है ऑप्शन से? 3 आयन। ओके, ऐसा हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कोबाल्ट का लेते हैं। कोबाल्ट है, निकेल लेते हैं, निकेल EN 2 Cl2 एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल देंगे, +4 आ जाएगा, ठीक। या कॉम्प्लेक्स स्पेयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये कुछ अलग ले लिया मैंने। EN फॉर इथिलीन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। सिंस डाई एक बार यूज हो चुका है, इसलिए हम लोग इसके बिस यूज करेंगे। E फॉर इथिलीन, C फॉर क्लोराइडो। तो पहले क्या करते हैं? LMO रूल फॉलो करेंगे, तो पहले लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ तो केटायन, सिर्फ ये केटायन एनायन है नहीं, तो लिगेंड क्या करेंगे? पहले C से क्लोराइडो, E से इथिलीन डायमीन, C से यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो एक ही चीज़ है। देन बिस यूज करेंगे, क्योंकि डाई एक बार यूज हो चुका है। इथाइलिन डायमीन, हाइफन दे रहे हैं, मतलब एक साथ लिख रहे हैं। निकेलेट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे निकेल लिखेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज 8 लिखने की जरूरत नहीं है। निकेल 2 ऑक्सीजन +4 आया ना, 4 आयन। आगे देखते हैं कुछ और। अब नेक्स्ट हम ऐसे देखते हैं दोज कॉम्प्लेक्स विच हैव कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, ठीक है। जैसे CO NH4 NH3 होल 4 Cl2 Cl। तो ये कैटायन हो गए, एनायन हो गए। कैटायन में क्या क्या है? एक 4 एमीन ग्रुप है, 2 क्लोराइड ग्रुप है। पहले लिखेंगे एमीन का टेट्रा एमीनो एमाइन, बिकॉज A है, सेम देखते हैं। फिर डाई क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, यहाँ 3 आएगा, आप लोगों को पता है।
फिर देन ये केटाइन का काम खत्म, देन क्लोराइड अलग लिख देंगे। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं हम लोग आयरन की। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3 आएगा, आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, H से हाइड्रोक्सो, E से इथिलीन डायमीन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथिलीन डायमीन, क्योंकि इथिलीन डायमीन में अगर डाई वर्ड यूज हो जाता है इसलिए 20 लिखेंगे, 20 इथाइलिन डायमीन। ओके, फिर डाई हाइड्रोक्सो, एक वर्ड में लिखेंगे कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम। ठीक है, उसके बाद आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसलिए +3 से Ph3 लिख देंगे आयन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, यहाँ भी +3 आएगा, देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नाइट्रिटो ग्रुप है, देखिए यहाँ पे लिगेंड ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसका नाम हो गया नाइट्रिटो O, और E तो पहले ही लिखेंगे, 20 इथाइलिन डायमीन। क्लियर, इसका काम खत्म। फिर ये नाइट्रिटो O, देन आयरन 3 आयन, आयन इसलिए लिखते हैं क्योंकि आयन है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स विच कंटेन न्यूट्रल, मतलब दैट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसमें कोई चार्ज ना हो, सिंपल सा यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर लिगेंड भी न्यूट्रल है, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएंगे। यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप, लिगेंड पहले हम लिखते हैं लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड, तो लिगेंड कार्बोनिल है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, 4 का टेट्रा कहते हैं हम लोग, टेट्रा कार्बोनिल, देन निकेल 0, कुछ नहीं लिखेंगे आयन वगैरह। आगे लिखते इसमें, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे +3 आएगा। यहाँ पे 2 है लिगेंड, एक एमीन एक क्लोराइडो, A से एमीन C से क्लोराइडो, तो पहले एमीन लिखेंगे, 3 है इसलिए ट्राई एमीन, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइडो या क्लोरो एक ही चीज है, क्लोरो। ठीक है, क्लोरो CHLORO क्लोरो, देन कोबाल्ट, इतना 3, तो 3 सिंपल सा लिख देंगे। आगे सेम है इसी तरह, लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या है 5, तो लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसके पास भी 0 निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा नोमेनक्लेचर लिखना। पहले सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, देन कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हमने सीखा सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, देन कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, देन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं एंड ब्रिजिंग, कॉम्प्लेक्स, ये लगता है टफ लेकिन है इजी, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुत इजी। ओके, थैंक यू।